वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Dear galaxy of intellectuals and our most valued chief guest, Honorable Bihari Lal Sharma ji, Vice Chancellor in Sampurnanand Sanskrit University, our respected Manager ma'am, respected Principal sir, esteemed Academic Advisor ma'am and Vice Principal sir, and our most admired parents and students. We heartily welcome you all on this beautiful evening of glittering stars and dark blue sky. I, Kritika, and I, Deepika, we are present here to express you our warm and cordial welcome to a grand celebration of language, culture and history. There is a boundless beauty in our culture and tradition. In the realm of time, where stories unfold and memories are woven into the fabric of eternity, we gather to celebrate the richness of our past and the diversity that makes us strong. From the ancient tales of our ancestors to the vibrant tradition that shape our identity, tonight we honor our heritage. With every step, a story is told and the journey unfolds. And with every word, our culture is revealed in all its glory and might. From ancient roots, our traditions grow and wisdom is sown. And with every note, our history starts to glow. Now, we are about to begin the event with the auspicious lighting of the lamp, the symbol of knowledge and enlightenment. We would now like to request our esteemed chief guest, Dr. Bihari Lal Sharma, respected Principal Sir, Vice Principal Sir, Academic Advisor Ma'am, Manager Ma'am, to light the lamp signifying the beginning of our event.
कञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीराम श्रीराम। Definitely my entire respected guests, they have occupied their seat. Your silence is extremely, it is desired and expected. Honorable Chief Guest of this particular program of Gyan Sakuntalam, Professor Bihari Lal Sharma, Vice Chancellor, Sampurnanand Sanskrit University, a person who is not physically here, the respected President of International Hindu School, Dr. Suman Kumar Mix, who is watching this program from Ohio, Lima, virtually, he is connected in this program. Honorable Manager Ma'am, Srimati Sandhya Misra Ma'am, Honorable Advisor Ma'am, Srimati Jayanti Samant Ma'am, my most energetic Vice Principal of this school, who is the convener of this program, Sri Ganesh Shankar Chaturvedi ji, my respected guardians and beloved children. This is really very that special occasion, which one is not the function of a school, but it is the function of entire respected guardians, not only guardians, but the mohalla in which we have this school, they have also their participation and they have also encouraged us. So special thank goes to them also. Really, this is the way, which one is the most desired way to teach our students that how they can be one such type of very honored citizen, how they can be one good citizen, how they can contribute their country. So really we are going to teach them. As already I have learned in my students' life, साहित्य क्या है, तो हमें हमारे गुरुजनों ने सिखाया, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना. If you are teaching your students only mathematics, science, or other such type of subjects, those who are, we are considering they are very essential, but if we are not inculcating या cultivating such type of virtue in them, जिसमें साहित्य संगीत और कला का ज्ञान अगर हम ना दे बच्चों में, तो हम उसे एक मशीन बनाकर छोड़ देते हैं. और यहाँ तो उससे ऊपर कहा गया है कि वह साक्षात पशु के समान है. तो उनमें किस तरह से मानवीय गुणों का संचार हो, कैसे उनमें यह गुणों की कहीं न कहीं यह जो अवधारणा हमारे विद्यालय की है कि उनको मानव पहले बनाइए, मशीन बाद में बनाइए, या उसी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन इस विद्यालय में किया गया है. और मैंने अपने कई सारे सुधी गार्जियनों से, कई सारे हमारे पास अभिभावकों ने कहा कि सर इस प्रकार का जो भी आप आयोजन जो अभिज्ञान शाकुंतलम करने जा रहे हैं, एक पब्लिक स्कूल में जहां बच्चों को प्रायः इस बात की शिक्षा दी जाती है कि कैसे पाश्चात्य ज्ञान हमारे इस प्राचीन ज्ञान पे ये भारी है, जो सबसे अधिक जिनके पास जिस प्रकार की जो हमारी अपने खुद की ज्ञान की हमारी पूंजी थी उसको हमने कमतर आंक कर पाश्चात्य ज्ञान को ही हमने मान लिया कि यही ज्ञान है. उसमें भी यह प्राचीन जो भी हमारा अपना नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम जिसकी रचना महाकवि कालिदास ने की थी, उसको हम गौड़ मानते हुए हम अन्य नाटकों को, अन्य प्रकार के किसी कार्टून कैरेक्टरों को हम उसको जगह अपने बच्चों को अधिक देते हैं, उनको अधिक सिखाते हैं और ऐसे कम देते हैं. लेकिन हमारे यहाँ हमारी जो सबसे बड़ी सोच हमारे बच्चों को किस तरह से मानवीय गुणों के साथ साथ उनको हम अपने से अपने भारतीय संस्कृति के प्रति भी उनमें यह जागृत करें कि क्या हमारे देश की संस्कृति रही है, कैसे इस देश का नाम हमारे जो है वह भारतवर्ष पड़ा. तो इस नाटक के मंचन के बाद हमारे सारे अभिभावकों को, सारे जितने हमारे बच्चे हैं जो इस पीढ़ी के, जिन्हें कहीं ना कहीं यह इस प्रकार के नाटक को शायद ही उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ हो,
तो आपके ही अपने खुद के अपने भाई और बहन इस स्टेज पर आकर आपको कहीं ना कहीं ये दिखाएंगे कि भारतवर्ष के लिए कौन सी ऐसी बात थी जो उस भारतवर्ष को बनाया, वह कौन सा कालखंड था जिसमें कौन सी बातें किस तरह से हमारे बच्चों के लिए जानने के लिए मिलेगी कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो तपस्वी पुरुषों ने कैसे इस भारत को संजोकर हमको दिया था। तो यह जैसा कि आप सारे लोग ज्ञात है कि आज हमारे विद्यार्थियों और हमारे शिक्षकों के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाने वाला नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम केवल एक साहित्यिक रचना नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आदर्श, प्रेम, धैर्य, मानवीय मूल्यों एवं का एक जीवंत दस्तावेज है। यह महाकवि कालिदास ने इस कृति के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम समय और परिस्थिति की परीक्षाओं में भी अडिग रहता है। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल एक प्रेम कथा है, बल्कि यह जीवन के सत्य, धर्म और कर्तव्य का भी उच्चतम उदाहरण है। मुझे गर्व है कि हमारे विद्यार्थी इस कालजयी कृति के माध्यम से न केवल अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को भी भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं समस्त विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों के इस प्रयास को मैं जानता हूं कि यह जो मंचन होने जा रहा है इसमें किसी एक की भूमिका नहीं है। इसमें मेरे शिक्षकों ने, मेरे बच्चों ने कई दिन से लगातार सतत प्रयास करने के बाद आज इसको इस स्थिति में लाए हैं कि वह मंच पर आकर इस नाटक का मंचन करेंगे। और मुझे मेरे माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि किसी उचित व्यक्ति के चुनाव को जो नाटक का मंचन होने जा रहा है, अगर उनका आशीर्वचन मिले तो यह आपका जो भी प्रोग्राम है वह भी कहीं न कहीं एक उच्चतम श्रेणी पर जाएगा और बच्चों को भी सीखने के लिए मिलेगा। इसी श्रेणी में हम लोगों ने इस बनारस जो काशी की पवित्र भूमि, उसमें जो सबसे विद्या का प्राचीन केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, उसके कुलपति से हम लोगों को कोई उपयुक्त व्यक्ति बनारस में नहीं दिखाई दिया जो इस प्रोग्राम का अध्यक्षीय उद्बोधन दे और जो उद्बोधन के साथ ही साथ हमारे बच्चों को आशीर्वचन दें और अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक की किस तरह की यहाँ पे आज भी प्रासंगिकता है, इसके विषय में हमारे बच्चों के लिए कुछ शब्दों में अपना आशीर्वचन आप ज्ञापित करें। तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि यह मंचन के लिए भी हमारे सारे छात्र तैयार हैं, तो मैं इस सभागार में सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर कि सर आप अपने आशीर्वचन से हम लोगों को अभिषेचित करें। सर प्लीज। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के इस प्रांगण में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित इस महनीय विद्यालय के यशस्वी प्राचार्य श्रीमान संतोष जी, उप प्राचार्य श्रीमान चतुर्वेदी जी, मैनेजर आदरणीय संध्या मिश्रा जी, सामंत जी और आभासी माध्यम से दूर देश में बैठ कर के अपने विद्यालय की समस्त गतिविधियों को बड़ी सूक्ष्मता से देखने वाले
इस महनीय विद्यालय की व्यवस्थापक और काशी की पवित्र धरती के सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम के दर्शक महानुभाव, मीडिया के सभी सम्माननीय महानुभाव, ये अपने आप में विलक्षण क्षण है जब कोई ऐसा पब्लिक स्कूल ऐसे नाटक का मंचन कर रहा हो जिस नाटक के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक पहचान बनी हो। ये अभिज्ञान शाकुंतलम केवल एक नाटक नहीं है, ये भारत का जीवन दर्शन है। महाकवि कालिदास, जिन्होंने भारतीय सांस्कृतिक साधना में अपना जीवन लगाया और संस्कृत में एक नई चेतना का जागरण किया था, ऐसे महाकवि की रचित कालजयी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, ये केवल मंचन के माध्यम से हम इसका मनोरंजन करें इतना भर नहीं है। मनोरंजन तो अच्छे नाटक की पहचान है ही, लेकिन इस नाटक के माध्यम से जब आप देखेंगे कि यहाँ प्रेम केवल भावना नहीं है, प्रेम एक साधना है। यहाँ धर्म केवल आचार नहीं है, धर्म आत्मा की आवाज़ है। यहाँ प्रकृति केवल एक दृश्य नहीं है, यहाँ प्रकृति हमारा सहकार के रूप में किस प्रकार उपकार करती है, इस भाव को दिखाया गया है। ये नाटक हमें अनेक रूपों में हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित करवाता है और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने इस नाटक का चयन किया मंचन के लिए। आज के इस चाकचक्य भरे युग में जहां पब्लिक स्कूल भारतीय परंपराओं से दूर होकर के आधुनिकता के रंग में रंगे हुए हैं, ऐसे समय में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ने का जो प्रयास है और इंसान को इंसान बनाने के लिए जो आपका संकल्प है, ये संकल्प सचमुच में सराहनीय है, ये संकल्प सचमुच में अभिनंदनीय है। दूसरे लोगों को भी इससे सीखना चाहिए कि हम आधुनिक ज्ञान जो भी हो उसको प्राप्त करें, उसको सीखें, लेकिन अपनी परंपरा को न भूलें, अपने मूल को न भूलें। क्योंकि मैं हास परिहास में कहा करता हूँ कि जो मूल को पकड़ करके रखता है वो मूली, और जो मूल को छोड़ देता है वो मामूली। इसलिए आप अपनी परंपरा से जुड़ करके जब मूल का भी सिंचन करते हैं, उस मूल के खिले हुए फूल को देखते हैं, तो आपके हृदय का सूल दूर होता है और आप निश्चित रूप से अपने जीवन में एक नई उमंग और अभंग तरंग के साथ शांति की अनुभूति करते हैं और पूर्णता मानव बनने की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के माध्यम से अनेक चीज़ों का संदेश महाकवि कालिदास ने दिया। आज के दिन ये और भी प्रासंगिक है जब दुनिया की भाग दौड़ इस तरह की है कि वो एक ऐसी दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है। बच्चा छोटा होता है, छोटे स्कूल में जाता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, बड़े स्कूल में गया, उसके बाद कुछ और बड़ा हुआ, बोर्डिंग में चला गया, बोर्डिंग के बाद और माता पिता की तमन्ना होती है कि विदेश में चला जाए, और विदेश में जाते जाते वो विदेश का होकर के रह जाता है। अकेले माता पिता अपने घर में पड़े रहते हैं, आपसी व्यवहार खत्म हो जाता है और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि संस्कार तक नहीं हो पाता है। ये पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव है। हमारी शिक्षा पारिवारिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है,
हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हम अपने परिजनों के साथ मिलकर के रह नहीं पाए तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमने जीवन में क्या पाया, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, जवान हुआ, विदेश चला गया और वहाँ सेटल हो गया, माँ बाप वैसे के वैसे यहाँ से उस लोक में चले गए, आखिर जीवन में पाया क्या। जीवन में आपने जो पाया वो अपनों का सुख जब आपको मिलता है, और उस अपनों के सुख की अगर आप देखेंगे कि उसकी गति क्या होगी, उस अपने के सुख को प्राप्त करने के लिए उसका रास्ता क्या होगा, तो वो वही होगा जो भारतीय जीवन दर्शन में है, आपने मंच पर लिख रखा है। एक अच्छे इंसान को बनने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यहाँ तक की यात्रा इस प्रकार से चले। और हमारा तो सांस्कृतिक दर्शन कहता है अन्न से आनंद तक की यात्रा। हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उस अन्न से हमें शक्ति मिलती है। तो पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, प्राण कहते हैं शक्ति को, तो प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश आता है। अब जब शक्ति आती है तो तीसरी चीज है मन की, और मन तभी व्यवस्थित रहता है जब व्यक्ति के भीतर शक्ति हो, और जब मन व्यवस्थित होता है तभी आदमी ज्ञान विज्ञान की बात करता है। इसलिए चौथा है ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। और जब ज्ञान विज्ञान का उदय होता है तब आनंद की आत्यंतिक अनुभूति होती है, जिसको हम कहते हैं आनंदमय कोश। तो अन्न से आनंद तक की भारतीय यात्रा, ये भारतीय यात्रा तभी पूर्ण होगी जब भारतीय परंपराओं को समझेंगे। और भारतीय परंपरा को समझने के लिए व्यक्ति की एक कमजोरी होती है कि वो सरलता की तरफ भागता है, और सरलता में भी सबसे अच्छा माध्यम सिखाने का नाटक के माध्यम से किया जा सकता है। ये नाटक का जो मंचन है ये केवल मन को उद्वेलित करने के लिए या मन के आवेग संवेग को व्यवस्थित करने के लिए या केवल आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये क्षणिक आनंद नहीं है। आप इस अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से देखेंगे कि तपश्चर्या में लीन एक ऋषि उपवन में पशुओं का कैसे पालन करते हैं, उपवन के पेड़ पौधों का कैसे ध्यान रखते हैं। हमें यहाँ प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, जैविक संरक्षण, जीवों का संरक्षण और गुण केवल राजमहलों में नहीं होते, वो जंगल की झोंपड़ी में भी हो सकते हैं। इसका संदेश महर्षि कण्व ने शकुंतला के माध्यम से दिया कि गुण जो है वो केवल बड़े भवनों में नहीं निकलते, गुण के लिए झोंपड़ी से निकला हुआ शकुंतला जैसा रत्न भी सिखा सकता है। इसलिए वह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करता है। जो लोग गरीब झोंपड़ी में रहता है, जो व्यक्ति गरीब के आवास में रहता है, उसको भी ये ध्यान रहना चाहिए कि आवास गरीब हो सकता है लेकिन गरीब के आवास का प्रकाश दुनिया को प्रकाशित कर सकता है। ये संदेश भी शाकुंतलम के माध्यम से दिया। और प्रेम, सच्चा प्रेम कैसे हो सकता है? वो प्रेम केवल भावना नहीं, वो साधना है। इस प्रकार का संदेश इसके माध्यम से दिया गया। और जब कण्व ऋषि अपनी कन्या शकुंतला की विदाई देते हैं तो किस प्रकार से समझाते हैं कि एक दूसरे के घर में जाने वाली कन्या के लक्षण, उसके धर्म क्या हैं, उसके दायित्व क्या हैं, और उसके विपरीत चलने वाले लोगों की क्या स्थितियां बनती हैं। बामा कुलस्याधयः, वो लास्ट में कहते हैं कि इसके विपरीत अगर कोई चलता है तो वो कुल को डुबोने वाला काम होता है। इसलिए हमें कुल को तारने के लिए किन किन गुणों को अपनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस नाटक के माध्यम से हमें कण्व ऋषि के आश्रम में पलती हुई शकुंतला और दुष्यंत के उस प्रेम भाव से सीखने को मिलता है। वो पात्र भारतीय जीवन संस्कृति,
भारतीय जीवन दर्शन को व्यावहारिक रूप से समझाने का सबसे सरल, सबल और प्रबल माध्यम है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस प्रकार की कालजयी रचना पर इन बच्चों के द्वारा इस प्रकार की प्रस्तुति दे रहे हैं, जिससे हमारा समाज हमारी संस्कृति से जुड़ सके और उनका खोया हुआ और सोया हुआ आत्मविश्वास का जागरण हो सके। हमारी लुप्त और सुषुप्त प्रतिभा का जागरण करने के लिए ये महाकवि कालिदास की कालजयी रचना बहुत सार्थक होगी। मैं आपको बधाई देता हूँ। और जब नाटक का कार्यक्रम हो, रंगारंग उत्सव का कार्यक्रम हो, ऐसे में किसी को भाषण देने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो उसमें अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाने का काम होता है। मैं ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता। आप सबकी मानसिकता उस रंगारंग कार्यक्रम को देखने की है। महाकवि कालिदास की कालजयी रचना पर आधारित उस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मंचन को देखने की है। मैं आपके और उनके बीच में ज़्यादा देर न रहते हुए मैं विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और आह्वान करता हूं कि दूसरे विद्यालय भी इनसे सीखें कि अगर हमें इंसान बनना है, खास करके आज के इस युग में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, विश्वास का अभाव का प्रभाव इतना है कि मानव मन में भटकाव है और चारों तरफ लाखों टन बारूद जल रहा है, सभ्यता नष्ट प्राय होने की कगार पर खड़ी है। ऐसे समय में अगर संसार को बचाना है, इंसान को इंसान बनाना है, मानव सभ्यता की रक्षा करनी है, तो संस्कृत की तरफ दुनिया की दृष्टि है। और जब संस्कृत की तरफ दुनिया देख रही है तो संस्कृत केवल भारत से निकली है और भारत की तरफ दुनिया की दृष्टि है और भारत की भी काशी की तरफ दृष्टि है। काशी में आप जैसे विद्यालय, आप जैसे महानुभाव जब मिलकर के अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए अपनी परंपराओं से जुड़ने का संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से काशी से उठी हुई आवाज़ दुनिया तक जाएगी, दुनिया में भटकते इंसान को रास्ता दिखाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इतने देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य दिया। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो बच्चे इसमें प्रस्तुति देंगे उनकी इतनी उत्तम प्रस्तुति हो कि उनके अभिनय में स्वाभाविकता हो, उनके संवाद में संस्कृत की सुगंध हो और उनके व्यवहार में सदाचरण का दृश्य देखा जाए। इस प्रकार का भाव बाबा विश्वनाथ उनके भीतर उतार दें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। So please join me into welcoming the driving force behind our institution, our respected manager ma'am, as she shares her valuable insights with us today. Hello, 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 hello. Good evening to all of you. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आदरणीय प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र जी, सचिव श्रीमती रेवती मिश्रा जी,
उपाध्यक्ष श्री नागेंद्र वशिष्ठ मिश्र जी एवं डॉक्टर क्षितिजा श्रीमती अनामिका जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष तिवारी जी, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी जी, शैक्षिक सलाहकार श्रीमती जयंती सामंत जी, उपस्थित अभिभावकगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, शिक्षकगण एवं प्यारे छात्रों, आज हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा महाकवि कालिदास रचित साहित्य अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक मंचन किया जा रहा है। इस नाटक में यह नाटक अपने आप में भारत भूमि का अभिनंदन है। इस अवसर पर यहाँ पधारे समस्त अतिथियों, मीडिया के लोगों, अभिभावकों, छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों समेत सभी दर्शकों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में संस्कृत और संस्कृति के वेता माननीय कुलपति जी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हैं। यह हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है। आपने अपना बहुमूल्य समय विद्यालय के लिए प्रदान किया। विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। विद्यालय और विद्यार्थियों और शिक्षकों का प्रयास सफलतम हो, इसी शुभकामनाओं के संग जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am. Now, it's our privilege to welcome a true educator and mentor, our academic advisor, ma'am. Her dedication to our academic growth and development is truly commendable. So let's give her a respectful welcome as she shares her expertise with us today. माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, वाइस चांसलर संस्कृत यूनिवर्सिटी, अन्य अतिथिगण, गार्जियंस, मैनेजर संध्या मिश्रा, प्रिंसिपल मिस्टर संतोष तिवारी, वाइस प्रिंसिपल गणेश शंकर चतुर्वेदी, टीचर्स, स्टूडेंट्स एवं मीडिया पर्सन, आज हम अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच संस्कृत हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी मौजूद है। मैं हृदय से उनका स्वागत करती हूँ। हमारे विद्यालय में आज कालिदास द्वारा रचित एक नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का मंचन किया जा रहा है, जिसका चयन हमारे विद्यालय के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र जी के द्वारा हुआ है। वह हमेशा बच्चों के बीच मानवीय मूल्यों के प्रत्यारोपण पर बल देते रहते हैं। इस कहानी में सम्राट दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम कथा को दर्शाया है, परंतु इसके पीछे जो भाव व शिक्षा छिपी है वह हमारे सामने एक उच्च आदर्श का बहुत सुंदर उदाहरण दर्शाता है। महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में समान अधिकार, अवसर व शक्ति प्रदान करना, ताकि वे अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। महिलाओं को शिक्षित करने व सक्षम बनाने का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें हमारे विद्यालय के बच्चों ने बहुत परिश्रम किया है। यदि उनसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। इनको सफलता, मेरी यही शुभकामना है। मैं इन बच्चों को शुभकामना देती हूँ कि ये जीवन पर्यंत
सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें। वह यहाँ आए सभी उपस्थित लोगों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. So ladies and gentlemen, tonight we embark on a journey into the heart of ancient India, a land of vibrant culture and timeless stories. We present to you Abhigyan Shakuntalam, a masterpiece of Sanskrit drama and literature that explores the power of love, the weight of duty, and the interplay between divine and human. So prepare to be captivated by the beauty of its language, the depth of its characters, and the pitiful tale of Shakuntala and Dushyant. Welcome to the timeless tale of love, loss and redemption as we present Abhigyan Shakuntalam, a masterpiece of Indian literature. This ancient Sanskrit play is penned by the legendary poet Mahakavi Kalidas weaves a captivating narrative of human emotions, spirituality and eternal quest for the truth. अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक अनुपम संस्कृत नाटक है जिसे विश्व साहित्य में प्रेम, प्रकृति और मानवीय भावनाओं के सबसे सुंदर चित्रणों में गिना जाता है। यह नाटक कोमल भावनाओं, आत्मीय प्रेम, शुद्ध प्रकृति और गहन मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत संगम है। इस नाटक की विशेषता इसकी सहजता, मधुरता और आध्यात्मिकता ऊंचाई है। इसमें प्रकृति को एक जीवित पात्र की तरह प्रस्तुत किया गया है। वनों का शांति भरा वातावरण, कलकल बहती नदियाँ, कोमल पुष्प, चहचहाते पक्षी और निर्दोष पशु जीवन सब मिलकर एक स्वप्नप्त दृश्य रचते हैं। नाटक के केंद्र में प्रेम है, निश्चल, सहज और आत्मा को छू लेने वाला प्रेम। इसमें मानवीय मूल भी है, विक्षोभ भी है, पीड़ा है, लेकिन साथ ही उसमें विश्वास, धैर्य और पुनर्मिलन की मधुर भावना भी है। शकुंतला का निश्चल प्रेम और दुष्यंत का पश्चाताप दोनों को कालिदास ने अत्यंत संवेदनशीलता से उकेरा है। भाषा की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम अत्यंत काव्यात्मक है। हर संवाद, हर दृश्य मानो किसी सुंदर चित्र या मधुर संगीत की तरह मन में उतरता है। सौंदर्य बोध, श्रृंगार रस, करुण और शांति का अद्भुत संतुलन इस कृति को एक अनोखी ऊंचाई पर ले जाता है। यह नाटक केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह जीवन की सूक्ष्मतम संवेदनाओं, धर्म और प्रकृति के बीच के संतुलन का गीत है। इसमें प्रेम को एक पवित्र तपस्या के रूप में देखा गया है जो समय और कठिनाइयों की अग्नि परीक्षा पे खरा उतरता है।
गतिविधिहुतं याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ता श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्न स्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। शुभ संध्या एवं सादर अभिवादन। माननीय मुख्य अतिथिगण, सम्माननीय विशिष्टगण, शिक्षक वृंद, सम्माननीय अभिभावकगण तथा मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का इस सांस्कृतिक संध्या में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी अनुपम साहित्यिक कृति का संक्षिप्त मंचन प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे भारतीय साहित्य की अमर धरोहर कहा जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास द्वारा रचित यह नाटक प्रेम, तपस्या, वियोग और पुनर्मिलन की एक अत्यंत भावनापूर्ण गाथा है। यह काव्य हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम की राह में चाहे जितनी भी बाधाएं आएं, धैर्य, विश्वास और सत्यनिष्ठा से उन्हें पार किया जा सकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम केवल एक कथा ही नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का जीवन प्रतिबिंब है। अब मैं आपको उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से परिचित कराना चाहती हूँ जिन्होंने इस महान कृति के पात्रों को अपने अभिनय से सजीव करने का प्रयास किया है। शकुंतला के सौम्य और भावपूर्ण चरित्र को साकार करेंगी स्वास्तिका। महाराजा दुष्यंत के वीरतापूर्ण एवं करुणमय स्वरूप को मंच पर जीवन करेंगे अनुज। महर्षि विश्वामित्र के तपस्वी रूप का सुंदर चित्रण करेंगे उत्पल तथा मेनका के मोहक सौंदर्य एवं भावनाओं को प्रस्तुत करेंगी श्रेया। इन सभी विद्यार्थियों ने अथक परिश्रम और संपूर्ण समर्पण के साथ इस प्रस्तुति को गढ़ा है। अब मैं मंच सौंपती हूँ हमारे आज के सूत्रधारकों को, युवराज सिंह और अदिति पंकज सिंह, जो आपको इस अद्वितीय कथा के भावनापूर्ण संसार के में आगे ले जाएंगे। नमस्कार। देवराज इंद्र की भव्य राजसभा।
महर्षि विश्वामित्र घोर तप में बैठे हैं, जिसके कारणवश इंद्रासन डोल रहा है और देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित हैं। हे देवराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? महर्षि विश्वामित्र की घोर तपस्या से स्वर्ग संकट में है। यदि उन्होंने अपनी साधना पूर्ण कर ली तो वे ब्रह्मर्षि बन जाएंगे और हमें अपने सामर्थ्य से पराजित भी कर सकते हैं। अवश्य। हे देवराज, वे महान तपस्वी हैं, लेकिन नारायण नारायण। हे देवेंद्र, मेरी दृष्टि में तपस्वी को सांसारिक मोह में फंसाना ही सबसे बड़ा उपाय है। हाँ, केवल प्रेम ही उनकी तपस्या को भंग कर सकता है। मेनका, तुम हमारी सबसे रूपवती अप्सरा, तुम्हारी मोहिनी रूप, छवि और नृत्य से कोई भी विचलित हो सकता है। तुम्हें ही यह कार्य करना होगा। अवश्य। हे देवराज, महर्षि विश्वामित्र केवल एक तपस्वी ही नहीं बल्कि एक क्रोधी योगी भी हैं। यदि वे क्रोधित हुए तो मुझे भस्म भी कर सकते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारी सहायता के लिए वायुदेव और कामदेव भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जो आज्ञा देव। एक ऋषि की पवित्र तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर उतरी स्वर्ग की अनुपम अप्सरा मेनका, जिसकी सुंदरता और नृत्य से देवता भी मोहित हो जाएं, वो मेनका वन में प्रवेश करती है। सही बोले ना?
झन बाजे पायलिया झनक झनक झन बाजे पायलिया बाजे पायलिया बाजे पायलिया बाजे पायलिया मोरी बाजे पायलिया मोरी झनक झनन झुमक छनन झनक झनन झुमक छनन मोरी झनक झनक झन बाजे पायलिया निसा निसा रे सरे पग मरे सा निसा ग ध नि प म ग म नि द प। यह कैसा तपस्वी है जिसने संसार से नाता तोड़ लिया है? क्या इनका हृदय भी प्रेम के स्पर्श से पिघल सकता है? कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता, जिनके स्पर्श मात्र से ही पत्थर भी पिघल जाए, वे कामदेव अपनी अर्धांगिनी रति के साथ वन में प्रवेश करते हैं। कंचन का सिंचन कर जाती रति कुंजन में अंचल में चंचल सी दामिनी भर लाती है किरणों की बेला में किरणों की बेलों पर किरणों के फूलों से किरणें सज जाती हैं मोरी छलक छलक जाए यौवन गगरिया 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 मोरी झन। सही बोले ना। यह कौन है जो इस एकांत वन में मेरी तपस्या को भंग कर रहा है? हे महर्षि, मैं एक साधारण स्त्री हूँ। मेरा नाम मेनका है। इस वन में भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँची। यह स्थान अत्यंत सुंदर है। आपकी तपस्या की ऊर्जा से यह स्थान दिव्यता से भरा है। मैं एक तपस्वी हूँ जिसे इन संसारिक सुखों से कोई मोह नहीं। हे महर्षि, प्रकृति का नियम ही यह है, प्रेम और सौंदर्य एक दूसरे को आकृष्ट करते हैं। क्या आप नहीं मानते ये सृष्टि प्रेम से चलती है? झनक झन बाजे पायलिया
कुछ समय पश्चात महर्षि विश्वामित्र पूर्ण रूप से मेनका के प्रेम में लीन हो जाते हैं और अपनी तपस्या भूलकर मेनका के साथ चले जाते हैं। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निंदिया आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, निंदिया आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाओ, गाओ रात भर सुनाओ, मैं लोरी लोरी। वन की निशब्दता में जहाँ समय भी मानो ठहर गया था, वहाँ एक दिव्य क्षण ने जन्म लिया। महर्षि तपस्वी विश्वामित्र और स्वर्ग की मेनका और स्वर्ग की अनुपम अप्सरा मेनका के मिलन से एक अद्वितीय कन्या ने धरती पर अपनी आंखें खोली। उसका स्वरूप अनुपम था, मानो चंद्रमा की शीतलता और पुष्पों की कोमलता एक साथ उसमें समाहित हो गई हो। मेनका ने उसे अपनी गोद में उठाया। उसकी मधुर मुस्कान में स्वर्ग की मधुरिमा झलक रही थी, किंतु इस सुखमय क्षण में के पीछे छिपा था एक दुखद भविष्य। विश्वामित्र
अपने तप के भंग से व्यथित सांसारिक बंधनों में विमुख हो रहे थे और मेनका जानती थी कि उसे शीघ्र ही अपनी पुत्री को पृथ्वी पर छोड़ स्वर्गलोक लौटना होगा। उसका जन्म, उस कन्या का जन्म केवल एक संयोग नहीं अपितु एक ऐसी कथा की शुरुआत थी जो प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन के अमर गीत को जन्म देगी। धूप की हल्की किरणें चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, नींदी आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए। लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं मैं लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी। लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी। हे ऋषिवर, इस पृथ्वी पर मेरा समय समाप्त हो चुका है। इंद्रलोक वापस जाना पड़ेगा। इंद्रदेव की आज्ञा है, इस कन्या का पालन पोषण आप स्वयं करें। हे मेनका, तुमने मेरी तपस्या भंग कर मेरे साथ छल किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सदैव मानवों के भांति प्रेम की पिरासा होगी और स्वर्ग लोक में भी तुम अशांत रहोगी। हे महर्षि, मैंने जो किया वे किसी द्वेष से नहीं किया था। प्रेम ही तो प्रकृति का ही नियम है। मेनका को श्राप मिलने के बाद वे अपनी पुत्री को वन में छोड़कर स्वर्ग लौट जाती है।
अरे यह कोलाहल कैसा? ऋषिवर, ये कोलाहल तो इस स्थान से आ रहा है। अरे ये क्या है? यह तो नवजात शिशु है। जी ऋषिवर। हे कालेश्वर, आज से तेरे इस हाथी की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। चलो इसे आश्रम लेकर चलते हैं। अवश्य ऋषिवर। गौतमी, पुत्री गौतमी। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मती भव। क्या हुआ ऋषिवर? इसे संभालो, आज से तुम इसकी माता हो। इसे अपनी गोद की भूमि प्रदान करो। मेरी गोद और आत्मा में तुम्हारा स्वागत है पुत्री। वैसे इसका क्या नाम रखना उचित होगा ऋषिवर? अभी तक तो शकुन पक्षी ही इसकी रक्षा कर रहे थे। तब तो इसका नाम शकुंतला ही रखना उचित होगा। उचित है, आज से यह शकुंतला नाम से जानी जाएगी। चलो अंदर चलो। मेनका के स्वर्ग लौट जाने के बाद नन्ही शकुंतला ऐसी आत्मीयता से जुड़ी हुई है कि वह उनसे बात करती है, उन्हें दुलारती है। प्रकृति और मानव के बीच का इस प्रकार का संबंध अद्वितीय और गहन है। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक है आज। क्या कोई स्वप्न देखा था रात को? स्वप्न ही क्यों, शायद किसी राजकुमार का आगमन होने वाला है। अरे नहीं, तुम सभी व्यर्थ ही मेरा उपहास कर रही हो। महाराज दुष्यंत का वन में आखेट करते हुए आगमन। हिरण चंचल है किंतु इसे घायल नहीं कर सकता। क्या ये कोई अप्सरा है? इसकी सौंदर्य और
की देवी जैसी है। हे राजन, आप कौन हैं और इस तपोवन में कैसे आए? मैं हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत हूँ। आखेट करते पावन आश्रम में आ पहुंचा, किंतु अब देख रहा हूँ कि यहाँ तो स्वयं प्रकृति हे राजन, यह हमारी सखी शकुंतला है। यह ऋषि कर्ण की पुत्री है, किंतु आप तो इस आश्रम में आए हैं। आपको ऋषियों का आतिथ्य ग्रहण करना चाहिए राजन। अवश्य, किंतु मैं कुछ वार्तालाप करूं, यदि ये संकोच न करें। हे राजन, यह तपोवन है। यहाँ सांसारिक चर्चाओं का कोई स्थान नहीं है। क्या प्रेम वायु ये को हे सुंदरी, जल मिलेगा? अवश्य। राजन, आप एक राजा हैं और मैं एक आश्रमवासी साधारण कन्या। हमारे मार्ग भिन्न है। परंतु क्या प्रेम भी तो प्रकृति का एक रूप नहीं? नहीं शकुंतला, प्रेम में कोई भेद नहीं होता। मैं तुम्हें अपने हृदय से स्वीकार करता हूँ। क्या तुम भी मुझे अपने हृदय में स्थान दोगी? शकुंतला, यह तो स्पष्ट है कि राजन का हृदय तुम्हारे लिए द्रवित हो गया। अब तुम क्या कहोगी? राजन, यदि यह सत्य है तो आप मेरे पिता ऋषि कर्ण से इसका अनुरोध करें। मैं उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कह सकती। हे सुंदरी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। ऋषि कण्व तीर्थाटन पर गए थे। इसी अंतराल में दुष्यंत और शकुंतला में प्रेम बढ़ने के कारण उनका विवाह हुआ। शकुंतला, ये मुद्रिका सदैव हमें हमारे प्रेम का परिचय देगी। कर लेते हैं, लेकिन दुष्यंत को राज्य के कार्यों के कारण हस्तिनापुर लौटना पड़ता है।
और विरह की अग्नि में जलती हुई, क्योंकि दुष्यंत राजपाट के कार्य से हस्तिनापुर लौट जाते हैं। ऋषि कण्व के आश्रम में महर्षि दुर्वासा का आगमन। कण्व ऋषि, कण्व ऋषि कहाँ हैं आप? कण्व ऋषि, जवाब दीजिए कण्व ऋषि, कहाँ हैं आप? हे कन्या, हे कन्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कण्व ऋषि कहाँ है? हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार, हमारी अवहेलना, हे जड़बुद्धि कन्या, तू हमारे क्रोध से परिचित नहीं है तो हो जाएगी। श्रेष्ठ कन्या, तूने हमारी पुकार का उत्तर न देकर हमारा घोर अपमान किया है। हम तुझे श्राप देते हैं
दिया कि जिसकी स्मृति में खो के तूने हमारी अवहेलना की है वो तुझे भूल जाएगा। उसकी स्मृति से तेरा रंग, तेरा रूप, तेरे से जुड़ा हुआ हर चिन्ह मिट जाएगा। विचिन्तयन्ति यमन्यमन्ता तपोधनं वोत्सि नमामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथा प्रवक्ता प्रथमं कृतामेव। क्षमा कर दे ऋषिवर, वह अपने आप में नहीं थी, वह विरह की अग्नि में जल रही थी ऋषिवर, वह अपने पति के याद में खोई थी ऋषिवर, उसे क्षमा कर दे। वह तो किसी पशु पक्षी का भी अपमान नहीं कर सकती, तो आप जैसे ऋषि का अपमान कैसे करेगी भगवान? क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे। मैं ऋषि दुर्वासा हूँ और अपनी अवहेलना करने वालों को मैं ऐसे ही नहीं जाने देता। क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे। उठो पुत्री, मैं अपने दिए हुए श्राप से तो इस कन्या को मुक्त नहीं कर सकता, किंतु यदि उस व्यक्ति के सामने इन दोनों से संबंधित कोई वस्तु लाई जाए तो उसकी स्मृतियां वापस आ जाएंगी, अर्थात यह कन्या उसे दोबारा याद आ जाएगी। अहो भाग्य ऋषिवर, तथास्तु। अहो भाग्य ऋषिवर। उठो सखी शकुंतला, उठो। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मती भव। सौभाग्यवती। शकुंतला के हाथ में दुष्यंत द्वारा पहनाई गई अंगूठी को देखकर ऋषि कण्व हर्षित हो कहते हैं, पुत्री, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। दुष्यंत जैसा योग्य वर तो मैं भी न ढूंढ पाता। कुछ दिवस बीतने के बाद प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मती भव। शुभ समाचार ऋषिवर, आप नाना श्री बनने वाले हैं ऋषिवर। बाद में कुछ उसके बाद भी है। क्या हुआ ऋषिवर, आप मौन क्यों हैं? क्या आप ये समाचार सुनकर प्रसन्न नहीं हुए? मैं अति प्रसन्न हूँ पुत्री, किंतु मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। राजा दुष्यंत ना मिलने आए, ना उन्होंने कोई समाचार दिए। अब शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास ही भेजना उचित होगा। उचित है। पुत्री शकुंतला और उनके भाइयों को लेकर तुम राजा के दरबार जाओ। हटो भाई हटो, बीच में खड़े हो गए पहाड़ जैसे। अरे हटा मत जाए। यास्यत्यशकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठः स्तम्भिता बाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ता जडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैः नवैः। शकुंतला की विदाई का समय आता है। सभी पशु पक्षी उदास हैं, फूल मुरझाने लगे, वन का वातावरण गंभीर हो जाता है।
विदा शकुन को करे तपोवन, विदा शकुन को करे तपोवन, भारी है हर प्राणी का मन, विदा शकुन को करे तपोवन। सींचती रही आज तक, देख रही हर क्यारी अपलक, खिले फूल अध खिली कली है, सिसक रहे सब वह कुसुमं प्रसूति समये, यस्य भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला परिगृहम्, सर्वैरनुज्ञायताम् अर्थात जो शकुंतला आपको जल पिलाए बिना जल पीने का प्रयास नहीं करती थी, अलंकरण प्रिय होते हुए भी स्नेहवश आपके नूतन पल्लवों को नहीं तोड़ती थी, आपकी प्रथम पुष्प उत्पत्ति पर जिसे महोत्सव जैसा आनंद होता था, वह शकुंतला पति गृह जा रही है, उसे अनुज्ञा प्रदान कीजिए, उसे अनुज्ञा प्रदान कीजिए। धैर्य त्याग ऋषिकंद बोलते, विदा विदा कह हृदय तोलते, शोकाकुल आश्रम का कण कण, विदा शकुन को करे तपोवन, भारी है हर प्राणी का मन, विदा शकुन को करे तपोवन। शकुन को करे तपोवन, विदा शकुन को करे तपोवन, भारी है हर प्राणी का मन, विदा शकुन को करे तपोवन। राजा दुष्यंत के दरबार में शकुंतला। महाराजा दुष्यंत की भव्य राजसभा।
लोकतिया शकुंतला की उंगली से अनजाने में अंगूठी सरोवर में गिर जाती है। वह अंगूठी जो दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी। कैसा लग रही बताइए? सही कदम है लौकत ना गणेश ये देखो ये ऑन है ना, अब आवाज नहीं आ रहा है। हम लोग रोध होकर चल जाएंगे तब हमारा तब राजा भगा देगा तुरंत नहीं। राजा दुष्यंत का भव्य दरबार। मन तो करता अंगूठी नहीं दिखाई लेकर भाग जी अंगूठी। पलाश कहाँ है? मेन तो पलाश है को बोल Nadim tanadim tadim dim tana tadim dim tana tere nadim tadare dani der 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 dim 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 Nadim tana dere nadim tana dim takradhan digga digna da takradhan digga digna da takradhan digga digna da tadim dim tana tadim dim tana ta dere nadim tagat tagat dig 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 nan 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 tikatan tha tha ta yin da katta hagit da katta da gin talang da ti da hagit da katta da gin talang da ti da hagit da katta da gin talang da ti da आश्रम वासियों के साथ शकुंतला का महाराज दुष्यंत के राजसभा में आगमन। हेलो हेलो रुक जाइए। कौन है आप लोग और क्या कार्य है आपको? हम ऋषि के आश्रम से हैं। हमें राजा दुष्यंत से मिलना है।
ठीक है, मैं महाराज से अनुमति लेकर आता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। महाराज, आपके राज दरबार में ऋषि कन्या अपने भाइयों के साथ आई हैं और उन्हें आपसे मिलने की अनुमति चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय। महाराज की जय हो। जिनके संपूर्ण आर्यव्रत में जय जयकार गूंज रही है, उन महाराज की जय हो। तुम कौन हो ऋषि कन्या? राजन, आप मुझे भूल गए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आश्रम में विवाह हुआ था हमारा। मैं इस बात को इनकार करता हूँ। ये सत्य नहीं है, असत्य है। आप हस्तिनापुर के राजा पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। मैंने तो कभी किसी ऋषि के आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया। राजन, आपने चिन्ह स्वरूप मुझे ये मुद्रिका दी। कहाँ है मुद्रिका? न कोई विवाह, न कोई प्रमाण। महाराज, आप शकुंतला को नहीं जानते? ऋषि के आश्रम में आकर आपने इनसे विवाह किया था राजन। इस स्त्री के साथ विवाह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमें लगता है कि राजरानी बनने का लोभ इसे यहाँ ले आया है। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं और शकुंतला रोती हुई वापस लौट जाती है। वे ऋषि कर्ण के आश्रम में ना जाकर घने वन में चली जाती है। महाराज दुष्यंत की राजसभा में मछुआरे का आगमन। जो अंगूठी शकुंतला के हाथ से जलाशय में गिर जाती है, वह मछली के पेट से मछुआरे को प्राप्त होती है। रुक जाओ, कौन हो तुम और क्या कार्य है तुम्हें? मैं मछुआरा हूँ, महाराज के लिए मुद्रिका लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं महाराज से अनुमति लेकर आता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। महाराज, आपके राज दरबार में एक मछुआरा आया है जो आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। उसे हमारे समक्ष ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, यह मुद्रिका मछली के पेट से मिली है, उस नदी से जहां से राजपथ गुजरता है। चुप रहो। ये तो वही मुद्रिका है जो मैंने शकुंतला को दी थी। हे ईश्वर, मैंने उसे कैसे नहीं पहचाना। वो सत्य कह रही थी, वो मेरी अर्धांगिनी है। मंत्री,
इस मछुआरे को उचित तोहफा दिया जाए। मैंने बहुत अन्याय किया। शकुंतला, मैं आ रहा हूं तुम्हें ढूंढने। मिल गया मैं। महाराज दुष्यंत शकुंतला को ढूंढने के लिए घने वन में जाते हैं, जहां वह भरत को सिंहों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखते हैं। दुष्यंत का वन में आगमन। ये तेजस्वी बालक कौन है जिसे सिंहों से डर नहीं लगता? तुम कौन हो तेजस्वी बालक? हे दुष्यंत, यह बालक तुम्हारा ही पुत्र है। शकुंतला सत्य कह रही है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण तुम अपनी स्मृतियां भूल गए थे, लेकिन अब वह श्राप समाप्त हो चुका है। पुत्र, ये तुम्हारे पिता हैं, चरण स्पर्श करो। शकुंतला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैं अपने किए पर लज्जित हूँ। क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगी? राजन, यह केवल मेरा नहीं, अपितु नारी जाति के सम्मान का प्रश्न है। मैंने अपने पुत्र को बिना किसी सहारे इस वन में पाला। अब जब सत्य प्रकट हो चुका है, तो यह निर्णय आपका है कि आप इसे स्वीकारते हैं या नहीं। मैं इस वीर बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये न केवल मेरा पुत्र है, अपितु भविष्य में इस संपूर्ण आर्यवर्त का सम्राट बनेगा। ये सिंहों के साथ खेलने वाला बालक भरत के नाम से जाना जाएगा और भविष्य में इसी के नाम से ये संपूर्ण राष्ट्र भारतवर्ष कहलाएगा। विशाल स्तंभों से सजी उस सभा का वातावरण शांत, गरिमामय और तेजस्वी था। दीवारों पर सुंदर चित्रकला और नक्काशी राज्य की समृद्ध परंपरा को दर्शाती थी। सभा में सुशोभित सिंहासन पर बैठा राजा दुष्यंत अपने तेज, धैर्य और न्यायप्रिय स्वभाव से सबका सम्मान अर्जित करते थे। उस राजसभा में विद्वान मंत्री, पराक्रमी सेनापति, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और नीति के जानकार विचारक उपस्थित रहते थे। नारायण, हे राजन, आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपका पुत्र भरत एक राजकुमार ही नहीं, अपितु आर्यवर्त की संस्कृति का प्रतीक है। उसकी वीरता, साहस, न्यायप्रियता उसे एक महान शासक बनाएगी।
बहुत जल्दी। भरत का वीरत्व और दुष्यंत की घोषणा। सभा में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम। आयुष्मान भव। मैं केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ। युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करना ही मेरा धर्म नहीं, अपितु न्याय और धर्म की रक्षा करना भी मेरा ही कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ कि इस भूमि पे कोई अन्याय ना हो, कोई भी व्यक्ति भय में ना रहे। हे राज्यसभा के सदस्यों, विद्वान ऋषि मुनियों और आर्यवर्त के नागरिकों, आज मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा हूँ। मेरा पुत्र भरत केवल हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी नहीं, अपितु इस संपूर्ण राष्ट्र का प्रतीक है। इसलिए आज से यह संपूर्ण भूमि भारतवर्ष के नाम से जानी जाएगी। यह भूमि मेरे पुत्र के शौर्य, धैर्य और नीतिपूर्ण शासन का प्रतीक बनेगी। भारतवर्ष की जय। महाराज दुष्यंत की जय। राजकुमार भरत की जय। आर्यावर्त की जय। ऋषि मुनियों का समर्थन और आशीर्वाद। मैं ऋषि कर्ण भरत को आशीर्वाद देते हुए कहना चाहता हूँ, हे राजन, तुमने एक धर्मयुक्त भूमि, भविष्य में ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि की भूमि बनेगी। भरत जैसे महान शासक के नेतृत्व में यह राष्ट्र एक आदर्श राष्ट्र बनेगा। चलो 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 जाओ। मैं मुनि वशिष्ठ आप सभी के समक्ष आज यह घोषणा करता हूं, आज से यह भूमि केवल एक भूखंड नहीं, अपितु एक आदर्श राष्ट्र का रूप लेगी। यह भूमि धर्म, सत्य, अहिंसा और पराक्रम का प्रतीक बनेगी। हे राजन, आपने एक धर्मयुक्त निर्णय लिया है। आपके पुत्र भरत के नाम से यह भूमि अनंत काल तक भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध रहेगी। इस भूमि में धर्म, ज्ञान और शौर्य की धाराएं सदा बहती रहेंगी। नारी शक्ति की जय। महारानी शकुंतला की जय। आज से यह संपूर्ण भूमि भारतवर्ष कहलाएगी। इस भूमि का प्रत्येक नागरिक यहाँ का अभिमान होगा। इस भूमि का प्रत्येक कण शौर्य, धर्म और न्याय का प्रतीक बनेगा। भारतवर्ष की जय। सत्य और धर्म की जय। महाराज दुष्यंत की जय। महारानी शकुंतला की जय। राजकुमार भरत की जय। इस प्रकार शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम से जन्मे वीर पुत्र भरत के नाम पर संपूर्ण राष्ट्र का नामकरण हुआ। यह भारतवर्ष केवल एक भूखंड नहीं, अपितु संस्कृति, परंपरा, धर्म और वीरता का प्रतीक बना। यह कथा केवल एक इतिहास नहीं, अपितु हमारे गौरवशाली अतीत की अमर गाथा है। जय भारत, जय भारतवर्ष। रथे मानो धात सीमित गति नातीर्ण जलधि पुरा सप्तद्वीपाय जयति वसुधामा प्रतिरथः इहायं सत्त्वाना प्रसभदमनात् सर्वदमनः पुनर्यास्य व्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।